Prachi, can you hear me? Yes, ma'am. So, students, today the webinar is will start at 11:30. So, you can stay connected or you can join at 11:30 also. Yeah, that's fine. See, the inconvenience causes regretted. This was unavoidable, so we couldn't avoid that. हम इसे नहीं कर पा रहे थे 11 बजे. तो आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट है कि you can join at 11:30 or you can stay connected as Prachi is announced. Thank you so much. Meet you at 11:25, 11:30, right? Thank you. It's a very good session, worth attending. I leave Prachi. Huh? Okay, ma'am. You stay, I mean, you see, huh? On. I'm keeping I'm keeping the webinar on. The students can connect accordingly. But recording, you can switch off. Yes, ma'am.
प्राची? Yes, ma'am. Recording abhi nahi karo na. It is not required. But the thing is, ma'am, it is inbuilt, so it will get recorded. Acha, okay. In that case, when the link is generated for this particular session, then see to it that it requires editing, because a lot of blank thing is there right from 11 to 11:30. No issues, ma'am. We will cut it down. That's what, Yeah, good. And good morning, students. All those who are still, Yeah, Sujal. Okay, great. See, this is how, you make this dull and, a speechless platform as live, when you keep, speaking. Very nice. Either in the chat box, because that is how we can stay connected and, communicating with each other, because tomorrow I'm going to have a session on communication. And communication is not all about speaking, but effective communication specifically. That's great. Good, good. Who else is expressing? एक्सप्रेस करें तो रियलमी का हाथ ऊपर है, रियलमी यूवन नाम नहीं है लेकिन फोन जरूर है। सुजल ने तो बोल दिया, दैट्स ग्रेट। यस सुजल बोलिए। गुड गुड। आप अनम्यूट करके प्राची, कैन दिस पुट ऑन देयर ऑडियोज? So we can ask a particular student, ma'am. Not everyone can do that. Everyone. Okay, okay. Sujal, would you like to be enabled your audio so that we can unmute yourself? Yeah, you can unmute him, Sujal. Yes, we are good that we are joined by our speaker today, and he's none other but Pradeep Rathod sir. Pradeep sir, good morning and welcome to English University. Sir, today you have a crowd of existing students as well as new students, right, sir? Prachi, there is Parshva Danda. Manish Kumar is also greeting us with good morning. Good. Hope this, greeting continues till you are with us, because slowly once they join, they, take care. Prachi, can you find Parshva Danda and can elevate him to Yes, panelist? yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. Good morning, Bharti ma'am. Good morning, very good morning. So we have again Pradeep sir with us today. Yes. Good morning. Good morning, everyone. And madam, you can reposition yourself because your face is slightly less visible. Yeah, now it is better. Still, it can be better. Yes, ma'am. That's Is it okay now? Yes, now it is good, madam. Thank you, madam. At least we can see your full face. So for students, we welcome Bharti madam. She's Dean School of Science. You are going to meet her soon in School of Science, especially all those BSc, MSc students. And we are expecting Amish sir and Abhinand sir anytime, who will be, addressing to you all in this session. It's very precious session because, we are educational initiative of KEDLA, and we have KEDLA leader with us, who will be addressing with his experience. And certainly industry experience and their knowledge is required for these students. Eventually, we are going to be absorbed in industry, or we are going to start our own enterprise also. Even in that case, we require this kind of skill sets, knowledge, and information. So we are lucky that we always are supported from KEDLA in some or the other form. And today we have
Pradeep sir with us. Prachi, if you can find Parsh Danda. Parsh, if you can raise your hand. Yeah. Yes. Just a minute. I'm going to elevate you to. Yeah, Parsh, I saw you. I'm trying to elevate you. Prachi, you have made me host, but I'm not able to elevate Parsh. Good morning, Vyas sir. Let me try, ma'am. Yeah. Sir, we can't hear you, sir. Yes, sir. Sir, you are not audible yet, sir. I think, sir, you can re-log in. If this sound is not coming, you can re-log in. So that will help. So most of the Indian problems, technological problems, are solved by switching off and switching on. Yeah, that's and the easiest one also, sir. Parsh was here. Where has he gone? Prachi, he was right. I mean, Parsh was there. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good morning, Amish sir. Or today it seems that technology is not supporting your voice, sir. Virat Mevada. Sir, there is a request coming frequently from students to speak in Hindi. हाँ जी विराट जी, हम कोशिश करेंगे कि हिंदी में बात करें. हम कनेक्ट हुए हैं अमीश व्यास सर से, who is Dean School of Engineering. So all engineers, please situate that we are connected with both the deans today. Dean School of Engineering Amish Vyas sir, Dean School of Science Bharti madam, and Pradeep sir from Cadila, who is the key speaker today. Maybe soon we'll be joined by Abhinand sir also. So now we will begin without any delay, inviting Parsh Danda to introduce the speaker today. Parsh Danda is actually student from BTech semester 7. So over to Parsh. I am Parsho. I am from BTech 7 Sem. I like to introduce some things about our speaker, Pradeep Singh Radhwa. Sir has 10 years of experience in sales and LD in India's top pharmacy. Sir has completed his BSc and MTech from Chhatrapati Shivaji University in 1994 and 1996 respectively. And after that, sir joined a company called Sun Pharma Limited in 1990 to 2003 Jan, where he worked in territories of sales executive, and later he joined the German Remedy Limited as marketing executive. From Jan 2003 to August 2004. And then he went to Lupin Limited, where he was assigned as marketing executive, but then later promoted to area manager in March 2009. He worked there till 2010. Then he went to Insta Pharmaceuticals from Jan 2010 to 2011, where he worked as executive trainer and development. Then he went to the Abbott Care Pharmaceuticals from April 2011 to April 2013, where he was designed as business training manager. And then sir worked with Zydus from April 2013 to 2020, where he worked as training manager and senior manager training. And now sir is with our Cadila Pharmaceuticals,
from mid-21 and is still working there. Sir is performance coach and certified instructor designer and certified in sales skill trainer and have interviewed with trained interviewed over 10,000 people. So now I will like the Sir Pradeep Singh to and take over the mic and tell us more about the today's topic. Welcome and years ahead. Sir. Thank you so much, Pash. Yeah, and before Sir Pradeep sir, I invite you, I would like to welcome Abhinand sir, our project head at Industrial University, because sir, you are interacting with our students for the first time who are newly admitted, as well the existing students. So sir, would like to hear from you a few words before we begin and give charge fully to Pradeep sir. Oh yeah, first of all, welcome you all the new students. This is a new beginning for you in the life. You know, college days are like the bright things where you will remember movies like Three Idiots, Jo Jeeta Wahi Sikandar, and probably Student of the Year, all those fancy things you will remember. But mindful, these 3 to 4 years are going to decide your base for next 30 to 40 years and how you are going to proceed forward in your life. So apart from enjoying, try to grasp things. This is where your intellectual as well as EQ skill is going to be performing, and that is going to put you through the corporate. So you can see IU as your gateway to the corporate world, or probably you are becoming an entrepreneur, like our founder chairman I.A. Modi sir has happened. This turning point webinar is going to be our weekly update for you. દર અઠવાડિયે તમને લોકોને we are going to give you some inputs from leaders in the industries who has got wisdom. એટલે તમને લોકોને you get the crux out of that wisdom and you become a better leader, become corporate leader or a better entrepreneur in your life. So this is our effort, which is a dream of our founder president of IU, Dr. Rajiv I. Modi, to make sure that you become the better leader in future. And none other IU like university, if you look at it, is able to drive you, giving you soft skill training, the important sales training or interview training like this, which we are doing through Turning Point. So always keep updated on Friday. No doubt sometimes you may find it irrelevant, but whenever you go to the corporate world, you will find it much better relevant. So whatever time you have, try to learn things. Learning is going to be much more important for you in life. 2003 થી લઈને 2021 સુધીની અંદર there are a lot of things which has changed. You know, the mobile technology has changed. In our time, we never used to have mobile. Internet was also not available. You used to go to cyber cafe. Things have totally changed. Today you can go to Google, you can do anything. In future we are going to be bumped with AR, VR. So things are going to keep on learning EQ things, which is going to build your value addition. What is your USP? You will build it through these soft skills. So thank you all and welcome to Indrashil University. You are under very good heads of Bharti Madam, Amish Bhai, Dr. Yadav sir, Namrata Madam. They are going to handle you to become the better leader. And whatever your problems, you are most welcome with the student section and come forward with your problems. We are here to help you out to make you better. IU is there to build a better leader. Thank you all, and anything is there, you can always bombard back and be interactive. There is a question. Life માં આગળ વધશો તો question પૂછશો, જવાબ લેશો તો આગળ વધશો. So keep on asking questions. Okay, that's the better way of reaching one step forward in your ladder. Thank you, and I would like to listen to Pradeep now. Thank you, Abhinand sir. Over to Pradeep sir. Yeah, thank you so much, sir. Thank you so much for the kind words. सर हिंदी थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा. अरे मैडम, आज जम के सबकी प्यास बुझाएंगे. आज हम इतनी हिंदी आज हम बोलने वाले हैं कि so people will not complain after this session कि हमने क्या बोला. मैडम, you have given a free hand to Tendulkar, so you don't have to worry about it. Yes, sir. Thank you so much again, sir, for kind words. I understand कि the language what we should use. Every time I sensitize all the स्पीकर्स, सारे स्पीकर्स को मैं पहले एक बार बोल देता हूँ कि सर थोड़ा देख लीजिएगा. Try to use a kind of English or try to use the more of Hindi, because certain things cannot be said in Hindi. But still I tell them, like if I say फुफ्फुस धमनी, so बहुत लोगों को दिक्कत होगा. If I say pulmonary arteries, it becomes little easy. So like that. So I tell them to do it, but people, if are comfortable, they can speak.
Right. So, good morning, Amit sir. Good morning, Bharti madam. Good morning, Abhinand sir, and very good morning to Dr. Namrata Bajaj as usual. So, again, it's a pleasure. Why it's a pleasure? Because it's a day one, and I feel really proud to be associated. मेरे को बहुत अच्छा लगता है day one पे, क्योंकि सबको अपना day one जरूर आता है, और ये बहुत जरूरी मतलब वो है. आप कभी भी याद रखना, जीवन में कुछ भी हो, हर चीज का प्रारंभ और उसका अंत हमेशा सबको याद रहता है. कोई इवेंट हो, कोई मूवी हो, कोई घटना हो, कुछ भी हो, उसका पहला और उसका अंत ये सबको याद रहता है. आप कोई मूवी याद करने की कोशिश करो, आप कोई घटना याद करने की कोशिश करो, आप किसी की शादी याद करने की कोशिश करो, तो आपको उसमें सब शुरू का याद रहेगा. जब आपने एंटर किया तो फर्स्ट इंप्रेशन क्या था, और आपको क्लाइमैक्स याद रहेगा, चलते समय क्या हुआ या अंत में क्या हुआ या कैसा हुआ. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका डे वन जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सालों तक याद रहेगा. एंड आई विल डू माई बेस्ट, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू, जितना मैं कोशिश कर सकता हूँ कि इसको मेमोरेबल बना सकने की, उतनी मैं कोशिश जरूर करूंगा. थोड़ा बहुत भाषण है और रहेगा, बट बहुत सारी कहानियां हैं. आज मैं आपके लिए कहानियों का पिटारा लेके आया हूँ. मेरे पास बहुत सारी कहानियां मैं लेके आया हूँ, और ये पब्लिक ऑन डिमांड रहेगा. आप जिस टॉपिक पे कहोगे उस टॉपिक में आपको कहानी सुनाऊंगा. आप जो बोलो वो. आज हमें पूरा कहानियों का खजाना लेके बैठे हैं आपके सामने, बट दैट विल बी अगेन विद अ मैसेज, दैट विल बी अगेन विद यू नो योर वे फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर. सो वो तो रहेगा ही. नेक्स्ट एक आपको क्या करना है, तो मैंने नेक्स्ट एक साल को 4 भागों में बांटा है. जो आपका एक साल नया रहने वाला, अगले साल फिर से हम यही करेंगे, तो उसको 4 भागों में बांटा है. 3, 6, 9 और 12. I request sharing rights, or someone can make me co-host. So I will share my screen. So मैं 4 पार्ट में करूंगा, 3, 6, 9 और 12. थोड़ा आखिरी में सरप्राइज भी है. हमेशा मैं गिफ्ट छोड़ के जाता हूं, तो आखिरी में भी मैं गिफ्ट देके ही जाऊंगा. That is my promise. Prachi, can you do the honor? Yeah. Good morning, sir. You can share. Yeah, thank you so much. Thank you so much. You would be able to share this. Thank you so much. Yes, I can see now the share screen has turned green. Green means I have all the license now. Thank you so much. So I hope everyone can see my screen. If you can see, just you can raise your yeah, correct. So welcome, my dear students. So as you can see my introduction, my name is Pradeep Singh. And 10 plus years I am working in sales, but I was working in training, but I have experience of 22 years plus. So you can say 2 decades back I joined this industry. So as I said, our topic will be 3, 6, 9 and 12. So हमारा topic रहेगा 3, 6, 9, 12. I will start with 3. 3 is the smallest number out of that. तो हम 3 से ही start करते हैं. तो सबसे पहले 3 सक्सेस मंत्र हमारे जीवन के, ये विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है. इसके लिए हम कहीं से पढ़ के, कहीं से ढूंढ के आपके लिए लाए. सर हिंदी में ही है, इसका हम आपको इंग्लिश बता देंगे. हिंदी में तो है ही ऑलरेडी, संस्कृत हिंदी ही है सर, तो उसको हमें मालूम है कि इसका हिंदी थोड़ा सा टफ पड़ेगा, तो इसके लिए हमने उसका आपको ऑलरेडी ट्रांसलेशन लिखा हुआ है. तो पहला है हार्ड वर्क. इट इज ऑन हार्ड वर्क. बोलते हैं उद्यमे निसिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नई सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा. मतलब उद्यमे निसिद्ध्यन्ति, कार्य करने से ही सफलता मिलती है. न मनोरथैः, सिर्फ सोच लेने मात्र से सफलता नहीं मिलती है. न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, मतलब सोते हुए शेर के मुख में मृग अपने आप प्रवेश नहीं करेगा, उसके लिए शेर को एफर्ट करना पड़ेगा. जैसे सबको मालूम है, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कल जाएंगे, जॉब करेंगे, देयर इज ऑलवेज अ रेस. वो एक हमेशा रेस रहता है प्रेडेटर और प्रे के बीच में. जो शिकारी है और शिकार के बीच में रोज एक रेस लगती है. दोनों अपनी जगह सही है. हम शेर अगर वो खाता है तो गलत नहीं, वो भी अपना पेट ही भर रहा है. और डेयर भी सही है अपनी जगह पे, क्यों अपने आप को बचा रहा है, वो जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है. तो उसमें कोई गलत या सही या कोई मोरल राइट नहीं है, राइट. बट अगेन हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट. अगर हार्ड वर्क हम नहीं करेंगे, सोच लेने मात्र से नहीं होगा. और सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे कठिन होता है फर्स्ट स्टेप, तो वो हमेशा रख देना है. जितना जल्दी हम फर्स्ट स्टेप रखेंगे उतना जल्दी हमारे लिए अच्छा रहेगा. दूसरा सक्सेस मंत्र, वृत्तम यत्नेन संरक्षित वित्तमाति याति च अक्षीणो वित्त अक्षीणो वृत्तस्तु हतोता. मतलब वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ यू. इट टेक्स इयर्स टू बिल्ड अ कैरेक्टर. बहुत सारा समय लगता है हमको अपनी इमेज बनाने में, बहुत सारा समय लगता है हमको अपना एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में, बहुत सारा समय लगता है हमको हम
कैसा लोग हमको देखते हैं, अपना परसेप्शन क्रिएट करने में, लेकिन उसको गंवाने में सिर्फ कुछ सेकंड लगते हैं। एक हमारा भद्दा सा मजाक या हमारा एक छोटा सा एक ऐसी कोई हरकत जो हमारे सालों की मेहनत को खराब कर दे, वो नहीं करना है हमको। तो इतना ये अगेन मैं बोलूंगा कि अगर पैसा है देखो आया जाएगा। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि काफी सारे लोगों ने कोविड टाइम में देख लिया है, बहुत सारे लोगों के पास पैसा था बट उनको बचा नहीं पाया। बट हाँ, जिनकी नेटवर्किंग थी, जिनके रिलेशन थे, जिन्होंने कोई अच्छे काम किए थे, जिनके बारे में लोग जानते थे, जिनकी इमेज अच्छी थी, उनका लोगों ने खुल के हेल्प किया। और ऐसे बहुत सारे लोग थे जो खुल के सामने आए। तो इस चीज को हमको संभाल के रखना है। धन आएगा जाएगा, अभी तो आपका शुरू भी नहीं हुआ है, बट फिर भी धन आएगा जाएगा, लेकिन कैरेक्टर एक बार लॉस्ट हुआ तो गए। फिर बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन हमें कोई चीज की होर्डिंग नहीं करनी है, हमें कोई चीज को एक्सेस में नहीं रखना है, सबको बांट के यूज करना है। ईशा वास्वेदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजितम आग्रदः कस्विदम। सो हमको कोई भी चीज दुनिया में मिलती है, चाहे वो जीवित है या कैसी भी है, उसका हमको होर्डिंग नहीं करना, अपने साथ बहुत सारा इकट्ठा करके नहीं रखना। जितना आप बांटेंगे उतना आपको मजा आएगा। खासतौर पर तो आप जानते हैं ज्ञान जल ये सब बांटने से बढ़ता है, ये सब बहता रहता है तो फ्रेश रहता है, अगर रुक जाता है तो खराब हो जाता है। तो 3 सक्सेस मंत्रा थे जो हम आपको देना चाहते थे। हमेशा हम आपको ये पीपीटी शेयर करते हैं, आज भी करेंगे। तो पहला है हार्डवर्क, दूसरा है करेक्टर या इमेज परसेप्शन। बहुत सारी कंपनी इमेज बिल्डिंग के लिए काम करती हैं आजकल, दैट यू हैव टू वर्क ऑन। एंड तीसरा है कोई भी चीज का हम होर्डिंग नहीं करेंगे, कोई चीज हम बहुत सारा एक्सेस में अपने पास नहीं रखेंगे, वो भले ज्ञान क्यों ना हो। अगर हमको लगता है कि हमें बहुत कुछ आता है तो ऐसे आदमी के साथ शेयर कीजिए जिसको आपकी हेल्प कर सकता है। आपने शायद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में सुना होगा, वो एक जीरो ग्रुप चलाते थे। पंडित दीनदयाल जी के बारे में बहुत कम हमने सुना है, बहुत कम लोगों ने जाना। बहुत बड़े विचारक थे, बहुत गरीब घर से थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि हमारे पास बहुत पैसा हो या बहुत ऐसा हो। एकात्म मानववाद का सिद्धांत लेके आए थे। उन्होंने 5 लोगों को ऐसा दत्तक लिया था जिसका वो परफॉर्मेंस इंप्रूव करेंगे, जिसको वो लोग जीरो क्लब बोलते थे। कानपुर में VSD कॉलेज है जिसके वो स्टूडेंट थे। तो उन्होंने ये चैलेंज लिया था कि अगर मेरा स्कोर अच्छा आता है तो दैट इज ओके, लेकिन मैं क्या 5 लोगों का स्कोर अच्छा कर सकता हूं? तो उन्होंने ऐसे लोग चुने थे जिनका स्कोर 0 था। तो इसको लोग प्यार से जीरो क्लब बोलते थे। लोग छेड़ते हैं, बुलिंग करते हैं। कॉलेज में बुलिंग बहुत इजी है, तुम्हारा 0 आता है, तुम्हारा इतना आता है, ये तेरा कितना आया, मेरा इतना है सर। तो बुलिंग बहुत आसान है। तो ही टुक ए चैलेंज, उन्होंने चैलेंज लिया कि नहीं, इन 5 लोगों को मैं 0 से एक सम्मानजनक फिगर लाके दूंगा, और उन्होंने लाके दिया। यही उनका एकात्म मानववाद था। उनका कहना था जो हमारा डेवलपमेंट है, जो हमारा विकास है, वो आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए समाज के, तब हम बोल सकते हैं कि हमने वाकई विकास किया है। तो अगर आप अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी नॉलेज अच्छी है, आपको समझ जल्दी आता है, तो कृपया 2-3-4 लोगों की आप हेल्प जरूर कीजिएगा। मैं किसी की हेल्प करता हूं तो एक ही बात मानता हूं कि सर आप ये हेल्प किसी को आप फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा आके। बहुत सारे लोग हैं पूछते हैं सर मेंटरशिप है या कुछ, आप हमको बताइए सर कैसे करना है, हम जॉब के लिए जा रहे हैं, कैन यू प्रिपेयर विद माय इंटरव्यू। मैं हमेशा करता हूँ, जितना समय मिलता है मैं जरूर करता हूँ। आप में से भी कभी कोई जाएगा, किसी भी काम से जाएगा, प्लीज यू कैन टेक माई हेल्प, यू कैन कॉल मी, यू कैन टेक माई नंबर, इन माई बेस्ट ऑफ द कैपेसिटी आई विल हेल्प यू, कैसे भी करके मैं आपको। बट उसके बदले में एक चीज जरूर मांगूंगा आपसे, आप भी किसी की हेल्प जरूर कीजिएगा। आप सेल्फिश मत बनिएगा उस समय पे, राइट। सो ये 3 सक्सेस मंत्र थे जो मैं सबको देना चाहता था। 6 क्वालिटीज हैं जो मैं चाहता हूं कि सबके अंदर हो। अप्रिशिएशन, एटीट्यूड, कंपैशन, एम्पैथी, ह्यूमिलिटी एंड ऑप्टिमिज्म। सब असेंडिंग ऑर्डर में ही है अल्फाबेटिकली, बट जैसे जैसे आप बढ़ोगे वैसे वैसे उसका इंपॉर्टेंस बढ़ता जाएगा। अप्रिशिएशन, किसी ने अगर कुछ खराब भी बोला है तो उसमें हम अच्छा कुछ ढूंढ सकते हैं क्या? किसी ने अगर कॉलेज में क्लास में कुछ किसी को फीडबैक दिया, या किसी ने कुछ कमेंट किया, या किसी ने आंसर किया, तो उसमें से हम कुछ अच्छा निकाल सकते हैं क्या? अच्छा बहुत मुश्किल है, फॉल्ट फाइंडर्स बहुत सारे हैं, गलती निकालना बहुत आसान है उसमें से। क्योंकि गलती निकालना क्यों आसान है? क्योंकि हम सब कॉम्पिटिटिव है, हम सब पैदा ही ऐसे हुए, हम सब बहुत सारे स्पर्म्स को हरा के पैदा हुए, तो हम सब बॉर्न कॉम्पिटिटिव है। तो हमारे अंदर ये फीलिंग होती है, अरे देखो 2 तरीके होते हैं, या तो हम अपनी लाइन बड़ी कर लें या दूसरे की लाइन छोटी कर दें। तो अपनी लाइन हम हर समय बड़ी नहीं करना चाहते, नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं। उस केस में हम क्या करते हैं, दूसरे की लाइन काटने में रहते हैं, दूसरे को नीचे दिखाने में रहता है, अरे देखो इसको तो ये भी नहीं आता, मेरे को आता है। तो वो फीलिंग नहीं होना चाहिए। हम कैसे पॉजिटिव, कैसे अप्रिसिएशन देख सकें सब में। आप एक सीक्रेट मूवी है, अगर आपको समय मिले तो जरूर देखिएगा। आप योर थॉट बिकम्स योर थिंग एंड योर थिंग बिकम्स योर रियलिटी। आप वो याद रखिएगा। आप जो सोचेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव बन जाएंगे, आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपको हमेशा नेगेटिव ही मिलेगा सब चीज में। एटीट्यूड,
एटीट्यूड आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है, राइट? आपको शायद समझ में नहीं आता होगा या आपको बिहेवियर जज नहीं कर पाते हैं, अगर कोई फीडबैक देता तो उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। कंपैशन, दूसरे की हेल्प जरूर करना और बिना स्वार्थ के, दैट इज कंपैशन, राइट? एम्पैथी, एम्पैथी मतलब दूसरे को भी हम फील कर सकते हैं क्या कि वो इस समय खुद के बारे में क्या सोच रहा होगा। ऐसा बोलते हैं कि किसी को जैसा हम अपने लिए ट्रीटमेंट देते हैं ऐसे किसी और को वैसा ट्रीटमेंट दें, बहुत जरूरी है। लेकिन जैसा वो ट्रीटमेंट चाहता है, जैसा वो चाहता है, क्या हम उसको वैसा ट्रीटमेंट दे सकते हैं? दिस इज द अल्टीमेट लेवल ऑफ एम्पैथी। ह्यूमिलिटी, बिल्कुल सिंपल, डाउन टू अर्थ, हम्बल, हमको बिल्कुल भी एयर सुपीरियरिटी एयर में नहीं जाना है। एंड ऑप्टिमिस्टिक, कभी भी कुछ हो हमको हमेशा पॉजिटिव रहना है। चलो ना, आई थ्रो ए चैलेंज टू, इसमें से किसी भी टॉपिक के बारे में स्टोरी अगर आप सुनना चाहते हो तो आप चैट बॉक्स में जाके टाइप करो वर्ड। इसमें से किसी भी चीज के बारे में अगर आप कोई स्टोरी सुनना चाहते हो तो आप जाके टाइप करो वर्ड। ओके ओके, ठीक है। तो आई थिंक मेजॉरिटी इज गोइंग फॉर एटीट्यूड। एटीट्यूड emerges as the single winner. Okay, so let's see for attitude. So एक husband wife थे, कपल था, let's say राम एंड मीरा। सो ये दोनों कपल थे। सो इन्होंने एक बहुत ड्रीम कार लिया अपना, ड्रीम कार लिया। तो कहीं लॉन्ग ड्राइव से वापस आए, लॉन्ग ड्राइव से वापस करने के बाद गैराज में गाड़ी खड़ा कर दिया और उन्होंने ये सोचा नहीं कि जो भी सामान पड़ा है, रात को देर से आए, थक गए, तो बोले बाकी सामान सब सुबह निकाल लेंगे। उसमें उनका वेडिंग एल्बम था, उनका कुछ मैरिज का कुछ इंपॉर्टेंट सामान था, कुछ घर का बिलोंगिंग्स था, कुछ चीजें थी जो पुरानी थी, किसी मैरिज फंक्शन से ऑलरेडी वो आए थे, तो कुछ उनका पर्सनल बिलोंगिंग था जो उनको बहुत क्लोज था, वो सब गैराज में उन्होंने रख दिया और वो सोने चले गए। सुबह उठ के आए, गाड़ी एकदम नई थी, उनकी ड्रीम कार थी, वो पहले ही ट्रिप पे उसमें गए थे। तो सुबह उठ के देखा तो गाड़ी गायब। अब बेचारे बहुत परेशान हुए और बहुत परेशान हुए, तो उन्होंने पुलिस को कंप्लेन किया, उन्होंने पुलिस को कॉल किया कि सर हम क्या बताइए। तो पुलिस वालों ने उनको डेटा दिया कि 98% कार हमने 2 दिन में ढूंढ लिया, 94% कार हमने 1 दिन में ढूंढ लिया, 93% कार हमने 6 घंटे में ढूंढ लिया। सो अभी पुअर राम बोला सर हो सकता है कि बाकी 7% में हो, उस केस में मैं क्या करूंगा? तो उन्होंने बोला उस केस में भी आपको वेट ही कर सकते हैं, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। अनफॉर्चुनेटली वो कार नहीं मिली, अनफॉर्चुनेटली वो कार नहीं मिली। तो उनको बहुत दुख हुआ और वो लोग बहुत सैड थे। तो जो मीरा थी उसकी वाइफ, वो शांति से एक दिन घर में बैठी तो बहुत दुखी थी। तो राम ने पूछा क्या हुआ? तो बोले गाड़ी तो गई, वो तो चलो इंश्योरेंस है, गाड़ी तो मिल जाएगी, लेकिन उसमें जो हमारे बिलोंगिंग्स थे वो चले गए, और गाड़ी भी हमारी ड्रीम कार थी, हमको ड्रीम कलर मिला था, बहुत वेटिंग था, उसके बाद हमको मिला था। तो शी वॉज वेरी सैड। तो राम ने उसको आंसर दिया, आई थिंक दैट स्पीक्स फॉर द एटीट्यूड। ही सेड यू कैन गेट अपसेट विद द स्टोलन कार and you can be happy with the stolen car. Stolen car is not going to change, that is going to remain same. जो स्टोलन कार वाला शब्द है वो तो वही रहेगा, कार खो गई है तो खो गई है। तो आपके पास अभी 2 चॉइसेस हैं। पहली चॉइस है कार खो गई है आप दुखी रहो, दूसरी चॉइस है कार खो गई है आप सुखी रहो। तो आपको डिसाइड करना है, क्योंकि कार खो गई वो सेंटेंस आप चेंज नहीं कर सकते, वो आपके कंट्रोल के बाहर है। लेकिन दूसरा जो पार्ट है उसका, उसको आप चेंज कर सकते हो। कार खो गई है आप खुश रहो, उसको आप चेंज कर सकते हो, या कार खो गई है उसमें आप दुखी रहो, उसको आप चेंज कर सकते हो। तो ठीक है, हो गया, उनको इंश्योरेंस मिला, गाड़ी नई आ गई, हो गए। बट इंश्योरेंस में भी सब पूरा तो नहीं मिलता है, उनका पैसा फिर भी लगा। अब राम गए, नई गाड़ी लेके आ रहे थे, बड़ी खुशी खुशी घर में कि चलो जाएंगे, ही वॉज वेरी हैप्पी। और देखिए दुर्भाग्य, फिर से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। पीछे से किसी ने उनकी गाड़ी को हिट कर दिया और उनकी गाड़ी में अच्छा खासा डैमेज है। और आपको मालूम है कि इंश्योरेंस में 100% कवर नहीं होता है, जो ग्लासेस वगैरह जो सब होते हैं वो सब कवर नहीं होते हैं, तो उनको पूरा उसमें से पैसा नहीं मिला। तो उनका काफी सारा उसका पैसा उसमें चला गया, नई गाड़ी थी। और सेकंड इंसिडेंट उनके साथ ऐसा हो गया। तब राम आया घर पे, तो राम आया तो बैठ के बड़बड़ा रहा था अपनी जगह पे कि दूसरे की गलती थी, लोग देखते नहीं है, लोगों को दिखाई नहीं देता है, इंडियन रोड्स आर फुल ऑफ इडियट्स, ऐसा सब बोल के घर में बात कर रहे थे। तो अभी मीरा आई उसके पास और उसके कंधे पे हाथ रखा और बोली, यू कैन रिमेन हैप्पी विद द थिंग्स विच हैज हैपेंड और यू कैन बी सैड विद द थिंग्स विच हैज हैपेंड।
तो जो डैमेज हुआ है उसके साथ आप सुखी भी रह सकते हो, जो डैमेज हुआ उसके साथ आप दुखी भी रह सकते हो। डैमेज हुआ को आप चेंज नहीं कर पाओगे, लेकिन सुखी रहना या दुखी रहना उसको आप चेंज जरूर कर सकते हो। सो दैट इज योर एटीट्यूड, दैट इज योर एटीट्यूड एंड दैट मेक्स ए वेरी इंपॉर्टेंट दिस थिंग। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो आपके हाथ में है उसको आप जरूर कंट्रोल कर सकते हो। अगर बारिश हो रही है तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो एटीट्यूड है हमारा। लेकिन हम रेनकोट या छाता लेके सकते हैं, वो हमारे हाथ में। उसको हम कैसे एंजॉय कर सकते हैं वो हमारे हाथ में, वो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो जो चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर है, पॉलिटिक्स हमारे बाहर कंट्रोल है, हम अपना दायित्व तो निभा सकते हैं। दैट इज माय एटीट्यूड। आई होप आई गिव एन आंसर। और कोई सर सुनना चाहेंगे? चलिए सेकंड ऑप्शन में देता हूं, इसमें से और कोई स्टोरी आप सुनना चाहते हैं? चलिए मैं ऑप्टिमिज्म पे एक बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूँ, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रदीप सर, ऑप्टिमिज्म फ्रॉम स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल मैम, आई जस्ट गो फॉर दैट। सो एक घर की बात है, एक घर में एक हस्बैंड वाइफ थे, उनके 2 बच्चे थे। एक बड़ी लड़की थी, एक छोटा लड़का था। छोटा लड़का बहुत बीमार पड़ गया, बहुत बीमार पड़ गया। अभी डॉक्टर आया उनके पास, डॉक्टर ने बोला कि जितना मैं ट्राई कर सकता था मैंने कर लिया है, और अभी क्या है कि या कोई मिरेकल हो या आप सर्जरी करवाइए, इनकी सर्जरी कराएंगे तो ही ये बच सकते हैं। अब सर्जरी कराने का खर्चा इतना ज्यादा था कि बेचारे गरीब माँ बाप के वो अब बस की बात नहीं थी। और आज के जैसे तब इंश्योरेंस है वो सब सुविधा भी नहीं थी, लोगों को खुद ही अरेंज करके पैसा लेना पड़ता था। तो उन्होंने बोला अब वो तो डॉक्टर साहब तो बोल के चले गए, अभी हस्बैंड वाइफ बेचारे बैठे हैं और बैठ के बात कर रहे हैं कि अब हमारे बच्चे को कुछ चमत्कार ही बचा सकता है, अदरवाइज हमारा बच्चा अब गया। उसकी बड़ी जो सिस्टर थी वो भी छोटी थी, 6-7 साल की होगी। तो उसने सोचा कि मैं क्या कर सकती हूँ इस कंडीशन में। शी वाज वेरी अपसेट, वो बहुत दुखी थी। तो उसने क्या किया, अपना पिगी बैंक उठाया, उसने अपना पिगी बैंक तोड़ा। उस पिगी बैंक में टोटल 111 रुपए थे। उस पिगी बैंक में टोटल 111 रुपए थे। तो उसने क्या किया, वो टोटल सारे 111 रुपए उठाए और वो पहुंच गई केमिस्ट के पास। अब बच्चे का दिमाग देखिए, तो पहुंच गई केमिस्ट के पास। सो केमिस्ट किसी से बात कर रहा था, कोई सीनियर पर्सन था, कोई जेंटलमैन टाइप का आदमी था, अपनी गाड़ी साइड में रख के और केमिस्ट से वो बात कर रहा था। तो केमिस्ट इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। तो ये बार बार अपने आप को नोटिस कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहा था। तो काफी देर हो उसको बात करते, तो उसने अल्टीमेटली उसके काउंटर पे ऐसे दोनों हाथ रख दिए। तो केमिस्ट ने ऐसे बहुत गंदे ढंग से नोटिस किया, क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो बच्ची का स्टेटमेंट सुनिएगा। बच्ची ने बोला कि मैं मिरेकल खरीदना चाहती हूँ, मैं चमत्कार खरीदना चाहती हूँ। बोले क्यों? बोले मेरे भाई को अब सिर्फ चमत्कार ही बचा सकता है, ही इज वेरी इल। तो केमिस्ट वाज शॉक्ड। केमिस्ट सेड, मैडम बेटा हम चमत्कार नहीं बेचते, हम मिरेकल नहीं बेच सकते, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो बच्ची ने बोला क्यों नहीं, अगर आप बाकी सब दवाइयां बेच सकते हैं तो आप चमत्कार या मिरेकल क्यों नहीं बेच सकते। केमिस्ट के पास उस बात का कोई आंसर नहीं था। और लड़की ने अपना पूरा पैसा दिखाया कि मेरे पास पूरा 111 रुपए हैं, आप दाम बताइए, मैं पूरा पैसा दूंगी, मैं फ्री में नहीं लूंगी आपसे, मेरे को ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मैं खुददार हूं। अब एकदम साइलेंस, जो लोग बात कर रहे थे सब एकदम साइलेंस। और बच्ची को क्या जवाब दें, उसका छोटा भाई है, बीमार है, मतलब आखिरी स्टेज पे है, कुछ नहीं हो सकता। जो जिस व्यक्ति से वो बात कर रहे थे, केमिस्ट, जिन सज्जन से बात कर रहे थे, उन सज्जन ने पूछा बेटा क्या प्रॉब्लम है, आप हमको बताओ। तो उन्होंने बोला अंकल ऐसा ऐसा है, और मेरे जो वो हैं डैडी, मतलब घर में ऐसा मेरा वो बीमार है और ऐसा ऐसा है और बहुत दिक्कत है। तो उनका ठीक है बेटा आपका एड्रेस बताओ। तो उन्होंने उनका अपना एड्रेस बताया। बोले चलो साथ में ही चलते हैं। उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाया, उसको लेके गए। उन्होंने देखा, उन सज्जन ने उस बच्चे को देखा, उसकी वाकई दशा बहुत खराब थी। किस्मत देखिए उस बच्चे की, जिसको हम ऑप्टिमिज्म बोलते हैं, वो सिटी के सबसे बड़े सर्जन थे। जो जिनको केमिस्ट बात कर रहा था वो सिटी के सबसे बड़े सर्जन थे। वो गए देखने के लिए, उन्होंने देखा उसको और उन्होंने बोला कि नहीं इसको ठीक कर सकते हैं। उसको हॉस्पिटल लेके आए, पूरा ट्रीटमेंट उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट किया, जो भी फंड रेजिंग के पास सिस्टम्स थे उन्होंने उसके थ्रू करके किया, और उन्होंने उस बच्चे को ठीक कर दिया। इस बीच में बच्ची 111 रुपए अपने केमिस्ट के पास ही छोड़ के आई थी, लेके नहीं आई थी। इसने बोल दिया नहीं मैं फ्री में कुछ नहीं लूंगी। तो उसने बोला ठीक है आपको चमत्कार मिलेगा। और उसका भाई एकदम ठीक होकर जब घर पे आ गया, तो इस बच्ची को आज भी विश्वास है कि चमत्कार उसने खरीदा है और उसकी कीमत 111 रुपए।
सो ये ऑप्टिमिज्म है, ये ऑप्टिमिज्म है। चमत्कार होते हैं बट वो इंसानी रूप में होते हैं। चमत्कार अभी उस रूप में मालूम नहीं, हमको तो नहीं देखा, हमने सुना भी नहीं, लेकिन हाँ इंसानों के रूप में चमत्कार जरूर होते हैं। तो वन हैज टू बी रियली ऑप्टिमिस्टिक, राइट सर। तो 6 क्वालिटीज हैं जो सबको रखनी चाहिए, स्टूडेंट लाइफ में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो आई होप इनमें से काफी सारी आप अपने लाइफ में उतारेंगे। ओके, एज प्रॉमिस चलिए बढ़ते हैं, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9। तो मैं आपको 9 छोटी छोटी स्टोरीज सुनाऊंगा, 2-2 लाइन की। सो टुडे व्हेन आई स्लिप्ड फ्रॉम द वेट फ्लोर, सडनली a person in a wheelchair caught me. I slammed my head in the ground. I was about to slam my head in the ground, but suddenly I was held by a person on a wheelchair. मैं गिरने ही वाला था, अचानक से व्हील चेयर में बैठे आदमी ने मुझको पकड़ लिया और उसने बोला, एग्जैक्टली 3 साल पहले मेरी भी स्पाइन या मेरी भी रीढ़ की हड्डी ऐसे ही टूटी थी। स्टोरी नंबर 1। सेकेंड स्टोरी, फादर ने बोला, बेटा जाओ तुम पढ़ाई करो, तुम बहुत बड़े प्रोफेशनल बनो ना बनो, लेकिन तुम चीजें सीख के जरूर आना। तुम कोशिश करो कि जितनी तुमको लर्निंग मिल सकती है। आपका पहले दिन कॉलेज का है, तो उसने बोला कि प्रोफेशनल्स ने टाइटैनिक बनाया था बट एमेचर्स ने गूगल और एप्पल बनाया। तो आप सीखो, आप समझो, आप ये मत सोचो कि क्या होगा क्या नहीं। आप एक वो लर्निंग एटीट्यूड रखो, लर्निंग कर रखो। आपको सीखना है, आपको कुछ बनना है, उस करना है, सीखना है। क्या होगा क्या नहीं बाद में वो समय बताए। तीसरा, यूनिकनेस। सो मैंने अपने मेंटर को पूछा, क्या पूछा कि 3 टिप्स बताइए हमको सक्सेस के लिए, 3 टिप्स क्या होने चाहिए। तो उसने हमको 3 टिप्स दिया। क्या दिया? वो पढ़ो जो कोई और नहीं पढ़ रहा है, वो सोचो जो कोई और नहीं सोच रहा है, और वो करो जो कोई और नहीं कर रहा है। सो अगर आप इनोवेटिव हो, अगर आप यूनिक हो, तो ये सक्सेसफुल होने वाले हो। अदरवाइज क्राउड में बहुत सारे लोग आपके जैसे डिग्री लेके आएंगे, वो ध्यान रखना। तो वो पढ़ो जो कोई नहीं पढ़ रहा है, वो सोचो जो कोई नहीं सोच रहा है, और वो करो जो कोई नहीं कर रहा है। ये एक सक्सेसफुल टिप्स हैं आपको लाइफ में आगे ले जाने के लिए। लुकिंग बैक, सो एक बच्चे ने पूछा कि वो पीएचडी कर रहा था, कि अपनी दादी को पूछा कि दादी आपके लिए सक्सेस क्या है। तो दादी ने बोला, बहुत सिंपल है, इसमें क्या, आप उसको पीएचडी करने की क्या जरूरत है। बोले क्या सक्सेस है बताइए। उसने बोला कि ऐसी मेमोरीज आपकी लाइफ में होनी चाहिए जिसको आप जब भी याद करो तो आपको स्माइल आए चेहरे पे, आपको खुशी मिले, आपको अच्छा लगे। तो क्या आप ऐसी मेमोरीज बटोर रहे हो? आर यू गैदरिंग सच काइंड ऑफ मेमोरीज? आर यू इन सर्च ऑफ दिस काइंड ऑफ हैप्पीनेस, राइट? सो जो आपको कुछ समय बाद आप जिसको देख के खुश होगे, जिसको देख के आपको अच्छा लगेगा, सो दैट काइंड ऑफ सक्सेस। गुडनेस एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड, कैसे लोग याद रखते हैं चीजों को। सो एक फायरमैन अपने निकला फायर स्टेशन से, बहुत थका हुआ था, 72 घंटे का शिफ्ट करके आया। यू कैन इमेजिन 3 डेज शिफ्ट वहां से करके आया। सडनली एक ग्रोसरी स्टोर में शॉपिंग कर रहा था, एक बच्ची उसको पीछे से दौड़ती हुई आई, उसको उसने हक कर लिया। तो ये एकदम शॉक हो गया, क्या है? बोले आपने पहचाना, मैं वही हूँ जिसको आपने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से 9 सितंबर को आपने निकाला। सी, इतने साल बाद भी लोग याद रखते हैं। सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो अगर किसी ने हमारे लिए काम अच्छा किया है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि हमको इतने समय तक याद रखना है, या कोई वारंटी नहीं है, उसको हम हमेशा, हर एक के अच्छे कामों को हमेशा याद रख सकते हैं, राइट? वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट स्टोरी, एक डोर बंद होता है, दूसरा डोर खुल जाता है। एक भाई साहब थे, उनको पता चला कि आज उनकी जॉब का लास्ट डेट है। उनको जॉब से जाने को बोला, उनके पास कोई जॉब था नहीं। सो उन्होंने कुछ नहीं किया, अपना ऑफिस से बाहर निकले सारा हिसाब किताब करके। किस्मत, जब वो गाड़ी ठीक कर रहे थे तो उनकी गाड़ी पंक्चर हो गई जब निकाल रहे थे। सो कुछ उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करें। इतने में उनके पास में एक BMW आके रुकी। सो उसने पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। उसने बताया ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो उसने बोला चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। घर छोड़ते समय रास्ते में उन्होंने बहुत सारी बातें करी। बात करते समय उसको लगा कि ये बहुत अच्छे आदमी है। उसने उनको नेक्स्ट डे अपनी कंपनी हायर कर दी। होते हैं, अभी भी ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं। ये सब रियल स्टोरीज हैं सर। ये एक भी ऐसी स्टोरी नहीं है जो फिक्शनल है, सारी रियल स्टोरीज है।
ओके, सो 3 भाई थे, राइट, 2 बहनें थी। वो सब गए अपनी मदर को, लास्ट टाइम चल रहा था तो मिलने के लिए मदर को गए। सो मदर ने पूछा कि भाई आप, उनको पूछा उन्होंने मदर को कि कैसा लग रहा है आपको। उन्होंने बोला मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट मैं चाहती थी कि ऐसा समय बार बार काश आता, हम सब इकट्ठा होते, हम सब मिलते। मतलब इसके पहले कि बहुत देर हो जाए, इसके पहले कि समय बहुत चला जाए, इसके पहले कि हम सब खो दें। जो हमारे बिलवर्ड लोग हैं, जो हमारे खास तौर पे एल्डरली लोग हैं, उनके साथ जितना ज्यादा समय हम बिता सकते हैं बिताइए। अफेक्शन, वेरी इमोशनल अगेन। सो ये इसने अपने फादर को किस किया उसके फोरहेड पे। कुछ ही समय बाद उसके फादर की डेथ हो गई। इसने रियलाइज किया कि लास्ट टाइम उसने फादर को फोरहेड पे किस किया था जब वो छोटा बच्चा था। कि हम, मतलब कई बार होता है हमारा भी एक गैप हो जाता है, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, बात नहीं करते या बहुत रिजर्व रहते हैं, राइट। तो इसके पहले मैं, ये सब रियल स्टोरीज है, इसके पहले बहुत देर हो जाए, हमारे पास बहुत कुछ है। जिसको प्यार करते हैं उसको हक जरूर दीजिएगा आज, या जब भी समय मिले आपको जरूर कीजिएगा, इसके पहले कि बहुत देर हो जाए। एंड आई थिंक कोविड ने हमको बहुत कुछ सिखा दिया है। इनोसेंस, तो क्यूटेस्ट वॉइस में मेरी बेटी ने पूछा कि रिसाइकिल करना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए। तो मैंने पूछा क्यों। सो उसने बोला कि सो यू कैन हेल्प सेव द प्लैनेट, तो हम प्लैनेट को बचा सकते हैं। सो मैंने पूछा अगर हम लोग प्लैनेट नहीं बचाएंगे तो उसने बोला तो हम अपनी सारी चीजें कहाँ रखेंगे। कितना इनोसेंट सवाल, राइट। सो दैट्स हाउ द किड्स आर सो इनोसेंट, राइट। Done. So can we move to the 12th things now? Any questions? Can I see any question? Yes, sir. We have questions, sir. Okay. Yes. सर हम लोगों ने जो 6 क्वालिटी की बात करी थी जी, तो उसमें एप्रिसिएशन, एटीट्यूड, कंपैशन, एम्पैथी, ह्यूमिलिटी और ऑप्टिमिज्म था। तो अटेंडी का क्वेश्चन है कि कोई ऐसा रोल मॉडल है जिसमें ये 6 क्वालिटी हो? बहुत मुश्किल है एक्चुअली। वो मुश्किल इसके लिए कि देखिए, एक वो बोलते हैं ना कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम तो श्री राम ही हुए, उसके बाद तो मर्यादा पुरुषोत्तम मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, सब में अलग अलग, और फिर हर एक का नजरिया देखने का अलग होता है। आपके लिए एटीट्यूड अलग हो सकता है, हमारे लिए अलग हो सकता है, तो हमारा रोल मॉडल डेफिनेटली अलग हो सकता है। इसमें शायद एक आदमी के अंदर होना पहली बात तो बहुत मुश्किल है, दूसरा हमारा देखने का नजरिया आपके देखने के नजरिए में बहुत सारा फर्क भी हो सकता है। देयर कैन बी लॉट ऑफ चेंजेस। So my humility can be different from your humility. For example, I'll give example. Then again, there's a upbringing, there's a culture. Like if you go to South and if someone calls you for a tea or coffee, it's a great honor for you, right? For them, it's a big thing. It's a cultural difference. But if you go to Punjab, if you go to North, calling for someone tea is very common. Chal chai peete hain yaar, right? But if you go to Tamil Nadu, if someone calls you for a tea, it's a very big thing. It will take years for you gather that kind of trust. It's a cultural difference. So again, so role models can be different because value system is different, perception is different. So जो आपका वैल्यू सिस्टम है, जो आपका परसेप्शन है, उसके हिसाब से आप देखिए। और मैं तो क्या बोलता हूँ, आप खुद में देखिए, आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति स मनुष्य। तो हमको अपने अंदर ही सब कुछ देखना है, ये सब हमको अपने अंदर है। जिसको भी आपको लगता है कि नहीं, आपको अगर लगता है एपीजे अब्दुल कलाम बहुत हम्बल थे, तो आप उनसे ह्यूमिलिटी सीख सकते हैं। बट उनकी स्थितियां हमारी स्थितियों में डिफरेंस हो सकता है, तो हो सकता है वैसे का वैसा हम ना ले पाए। उनके जो लाइफ के स्ट्रगल थे, हमारी लाइफ के स्ट्रगल अलग है। आपको शायद मालूम है कि एपीजे अब्दुल कलाम में बचपन में न्यूज़पेपर बेचे थे, और न्यूज़पेपर बेच के उनके फादर सेलर थे, तो भी घर का खर्चा चलता नहीं था। तो उन्होंने बहुत हार्डवर्क किया। उसके बाद वो पायलट बनना चाहते थे, जो पायलट बन नहीं पाए। काश वो पायलट बन जाते तो देश को इतना बड़ा साइंटिस्ट नहीं मिलता, देश को डीआरडीओ नहीं मिलता, देश को मिसाइल्स नहीं मिलता, देश को जो आज हम सेल्फ रिलायंट है डिफेंस में, वो नहीं मिलता। तो इसलिए फेलियर नहीं है, ठीक है, उन्होंने जो किया सो किया। हमारे लिए रेजिलियंस का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, वो ह्यूमिलिटी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आपके लिए कोई और हो सकता है। किसी के लिए रेजिलियंस का एग्जाम्पल अब्राहम लिंकन हो सकते हैं। अब्राहम लिंकन ने सारे इलेक्शन हार दिए थे,
कॉर्पोरेटर से लेके वाइस प्रेसिडेंट तक इलेक्शन में बुरी तरह से हारे थे, लेकिन फाइनली प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन गए। उनका कितनी बार उनका ही बिकेम बैंकरप्ट, कितनी बार मतलब उनकी गर्लफ्रेंड से उनका अफेयर खत्म हो गया, कई लोग तो सुसाइड कर लेते, but every time he bounced back. And today Abraham Lincoln is one of the most respected president of America. तो आप रेजिलियंस उनसे सीख सकते हैं, हाउ टू बाउंस बैक। आप विल्मा रुडोल्फ से सीख सकते हैं, आप ओपरा विनफ्रे से सीख सकते हैं। विल्मा रुडोल्फ वाज वन ऑफ द बेस्ट रनर ऑफ दिस वर्ल्ड, जिसको बोला था कि जमीन पे पैर नहीं रख पाएगी, शी मेट विद द एक्सीडेंट इन द किड व्हेन शी वाज अ किड, जिसको डॉक्टर ने बोला था कि जमीन पे पैर भी रखे तो बड़ी बात है, 100-200 मीटर में वर्ल्ड चैंपियन है, जिसके बारे में आज इतने साल बाद हम चर्चा कर रहे हैं, विल्मा रुडोल्फ। आज हुसैन बोल्ट को सब जानते हैं, विल्मा रुडोल्फ को बहुत कम लोग जानते होंगे, गूगल में सर्च कीजिएगा। उसको डॉक्टर ने कमेंट किया था कि आप नहीं चल पाओगे कभी जिंदगी में, चलना तो छोड़ो, वो ऐसा दौड़ी कि वर्ल्ड चैंपियन हो गई। सो आप किससे सीखते हैं रेजिलियंस, और आपके ऊपर है। आपकी ह्यूमिलिटी सीखनी है, आप सचिन तेंदुलकर से सीख सकते हैं। सचिन तेंदुलकर ने कभी किसी को मुंह से जवाब नहीं दिया, हमेशा बल्ले से जवाब दिया। सचिन तेंदुलकर को आपने कितना भी बुलिंग किया, उसको स्लेजिंग किया, सब कुछ किया, उसने मुंह से कभी जवाब नहीं दिया। नेक्स्ट बॉल पे 4 होता था, वो पक्का था, तय था। वो बॉलर को वो खेल के मारता था, अपने कर्मों से मारता था, शब्दों से नहीं मारता। तो हमें किसी को बोल के प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हमको हम्बल ह्यूमिलिटी सीखनी है तो हम सचिन तेंदुलकर से सीख सकते हैं। हमको एटीट्यूड सीखना है तो हम धोनी से सीख सकते हैं कि कौन सी सिचुएशन में हमको अपना दिमाग ठंडा रख के खेलना है, या आपको दिमाग कैसे हमको सामने वाले को पढ़ लेना है, कैसे हमको ऐसा कुछ कर जाना है जो लोग गेस नहीं कर पाते हो, कैसे अपोनेंट कोई भी रहने दो, हम अपने हिसाब से चलेंगे। हमको सामने वाले को देख के घबराना नहीं है, या उसके हिसाब से हमको ये स्ट्रेटजी थोड़ी बहुत ट्विक करनी है, लेकिन हमारे पास जो है हमें सबसे पहले उस पर भरोसा करना है, रादर देन कि वो बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत बड़े नाम है, ऐसा कर देंगे। हम जोगिंदर शर्मा से भी वर्ल्ड कप फाइनल जितवा के लाएंगे, वो महेंद्र सिंह धोनी है, वो एटीट्यूड है। सर बुमराह तो बड़े बॉलर है सर, जोगिंदर शर्मा से अगर वर्ल्ड कप जिताया वो बहुत बड़ा था, वो बहुत बड़ा, वो उसके जैसे ही आदमी कर सकता। अदरवाइज लोग सेफ जोन में जाना पसंद करते हैं, भाई कंफर्ट जोन है, ये ठीक है, इसको ही दो, ये बॉलर है। सो और वो भी नया बच्चा, नया, वो उसके लिए फर्स्ट ये सब, ये एटीट्यूड है। तो आप जो जिसको जिससे चाहिए उससे वो सीख सकता है। आपको अगर कंपैशन सीखना है तो मदर टेरेसा से आप सीख सकते हैं। दूसरा कंट्री में, शी वाज बोर्न इन सम अदर कंट्री, शी केम टू इंडिया एंड शी वर्क फॉर लेप्रेसी। लेप्रेसी लोग छूना पसंद नहीं करते थे। कोड जिसको हम लोग बोलते हैं, कोड़ी मतलब हमारे गाली की तरह यूज करते थे। कोड़ी हो गया मतलब अनटचेबल, उसको छुएंगे नहीं लोग, और ऐसे गाली बोलते कि ये कोड़ी है, मतलब कोड़ी हम लोग बोलते हैं हट कोड़ी है इधर से, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ गाली। सो शी केम एंड शी सर्व दोज पेशेंट जिसको कोई टच नहीं करता, अनटचेबल थे जो एक समय पे। तो अगर आपको कंपैशन सीखना है कि बिना स्वार्थ के हम कैसे कंपैशनेट बन सकते हैं, तो आई थिंक मदर टेरेसा इज अ वेरी बिग एग्जांपल। बहुत सारे लोग हैं सर ऐसे। आई रिसेंटली हर्ड अबाउट अ पर्सन, वो पेड़ से कीलियां निकालते। अब कैन यू इमेजिन, वो पुणे में है, आई एम जस्ट मिसिंग हिज नेम। वो सिर्फ क्या करते हैं, उन्होंने टनों कीलियां निकाल दी पेड़ में से। ही फील्स, एंड दैट्स ट्रूथ, कि ट्रीज आर द लिविंग बीइंग। तो अगर वो लिविंग बीइंग है तो उनको पेन होता है, या उनको बुरा लगता है, या उनकी ग्रोथ रिटार्ड होती है। एंड आई थिंक मेरी वाइफ ने मेरे को लेसन सिखाया। जब हमारे घर में प्लांट्स आते हैं तो शी गिव मी अ लेसन कि प्लांट से शुरू में शी मेक देम अकस्टम्ड। वो अदरवाइज कई बार प्लांट ग्रो नहीं करते बिकॉज ऑफ सम फनी रीजंस और सम रिडिकुलस रीजंस। प्लांट ग्रो ही नहीं करते हैं। क्यों? जैसे हम लोग कहीं पे ग्रो करते हैं, वहां से कहीं नए एनवायरमेंट में जाएं तो कई बार हम लोग को नहीं अच्छा लगता है, या कई बार हम लोग कंफर्टेबल नहीं होते, तो नहीं हमारी इच्छा, हम खुश नहीं होंगे। हो सकता है ऐसा प्लांट। तो हमारी वाइफ उनसे बात करती थी, उनको अच्छे उसमें रखेगी, उनको फैमिलियराइज करेगी, एंड सडनली आई सॉ प्लांट्स वर ग्रोइंग। सो हम किसी से कुछ भी सीख सकते हैं सर, ये हमारा है। तो ये जो मैं बोला, एक पॉटमैन का पढ़िएगा कहानी, एक मुंबई में है, उनके बच्चा एक्सपायर हो गया बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट। एंड व्हाई एक्सीडेंट हैपेंड इन मुंबई? बिकॉज ऑफ द पॉट होल्स, रोड में गड्ढे थे। तो अभी क्या करते हैं, वो डेली सुबह निकलते हैं अपनी गाड़ी लेके, उनके पास एक ऑटो है, ऑटो में वो कंक्रीट डालते हैं, वो मिट्टी डालते हैं, सब कुछ डालते हैं, सारे पॉट होल्स भरते हैं मुंबई के। वो जिंदगी रो रो के काट सकते थे। यस मैम। सर काफी रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं इस चर्चा से, और एक रिफ्लेक्शन आया है कि रतन टाटा जो है उनमें ये सारी क्वालिटी आज की प्रेजेंट डेट में उनमें है, जो कि काफी क्लोज है ये 6 क्वालिटी जो आपने बताई। और
कुछ स्टूडेंट्स जो हैं ये भी बोल रहे हैं कि सर आपने आंसर बहुत अच्छा दिया, लेकिन क्या कोई ऐसी बुक है जो इन 6 क्वालिटी के बारे में कुछ बता सके, इंडियन ऑथर वाली है? Sure. और इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आ रहे हैं सर, तो एक क्वेश्चन हम ले लेते तुरंत। ये यंग जनरेशन का बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है। उषा उपाध्याय ने पूछा है कि सर हाउ कैन वी अंडरस्टैंड फीलिंग्स ऑफ पर्सन? Why this question? Because sir, nowadays many of us can break their relation with their good one due to small misunderstanding. So sir, how can we know others' feeling? Feelings. हाँ जी, feeling के कारण ही सारे relations break और make हो रहे हैं। Correct. तो बहुत सिंपल है, अगर हम खुद की फीलिंग समझ पाएंगे तो दूसरे की फीलिंग समझ पाएंगे। तो सब ये शुरुआत होता है सेल्फ रियलाइजेशन से। You will understand others' emotion later part. First is क्या हमको खुद की feelings पता है क्या? So ultimately, what is feeling? Feeling is ultimately kind of emotions, you know. So that's how the difference from the human and the animals is. So अगर हम खुद की feeling अच्छी तरह से समझते हैं तो दूसरे की feeling समझ पाएंगे। हाँ, बट किसी का undue demand है या किसी का over expectation है या किसी का ऐसा कुछ हमसे कुछ आता है, और दूसरी बात feelings expectation से भी जुड़ी हुई है, राइट? सो किसी की फीलिंग समझना हमको उतना ही जरूरी जितना हमको अपनी फीलिंग को समझना जरूरी है। तो हमको पहले खुद की फीलिंग समझना जरूरी है, उसके बाद जब हम उनकी फीलिंग समझ पाएंगे तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी बैलेंस। सो दैट्स हाउ द इमोशनल इंटेलिजेंस है। फर्स्ट इट स्टार्ट्स विद द सेल्फ रियलाइजेशन, देन इट गोस टू द अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग, देन वी आर एबल टू मैनेज द रिलेशनशिप। तो हमको खुद का फीलिंग समझना है, ऑटोमेटिकली हमको दूसरे का फीलिंग समझ में आए, जो पिंडे से ब्रह्मंडे। यस, एंड अगेन एक चीज मैं और यहाँ बोलना चाहता हूँ, शायद फीलिंग की बात शायद इसलिए रिलेशनशिप की बात अगर हो रही है, लेकिन ये भी हो सकता है कि हम सबको खुश नहीं कर सकते। हम फीलिंग समझ भी लेते हैं कई बार, लेकिन हम सबको खुश नहीं कर सकते। वो भी एक समझना चाहिए कि हम यहाँ सबको खुश करने के लिए नहीं बैठे हैं। हाँ, जहां तक हो सकता है आई विल बी हम्बल, आई विल बी दिस थिंग, इसके बाद भी अगर कोई हमसे नाराज होता है तो फिर उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम यहाँ सबको खुश करने के लिए नहीं बैठे हैं, मतलब हमारा खुद का लाइफ है, हमारा खुद का वो है, ठीक है। देखो, रिलेशन को अगर टिकना होगा तो रिलेशन जरूर टिकेगा, वो हमेशा डबल साइडेड होता है, और सिंगल साइड से कभी नहीं टिकता है। कोई भी रिलेशन दुनिया का सिंगल साइड से नहीं टिका। आज 22 साल से हमारी शादी हुई, तो जितना हमने उनके लिए डिवोट किया उससे ज्यादा शायद उन्होंने डिवोट किया होगा हमारे लिए। अगर मेरे अंदर ये फीलिंग है, जितना अगर मैं 10 कदम चलता हूँ और वो 12 कदम चलती है, अगर मेरे अंदर ऐसा फीलिंग है तो ये रिलेशनशिप को कोई कुछ नहीं कर सकता। और हम अपने रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन को एंट्री नहीं देते कभी भी, कोई भी हो। हम हमेशा सेम डे पे ही सारा, उसको बोलते हैं कि अगर जैसे आपने खाना खाया तो अगर तुरंत आप हाथ नहीं धोगे तो आपका जो हाथ में जो है वो जम जाएगा, या आपके ये बर्तन आप नहीं धोगे तो लेडीज को मालूम है कि जैसे खाना रखते हैं नल चला देते हैं, पानी चला देते थोड़ी देर के लिए, नहीं तो एक बार वो सूख गया जम गया तो फिर ठीक नहीं होगा। तो वो आपको तुरंत का तुरंत करना पड़ेगा। अगर कुछ ऐसा आपको लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग, तो आप बात करो, तुरंत बात करो, मतलब उसमें टाइम वेस्ट मत करो। हमारे लोगों का ऐसा है कि हम हस्बैंड वाइफ कोई भी झगड़ा हो शाम को खत्म करके, ऐसा नहीं हम बोलेंगे हम आदर्श हैं, झगड़े बहुत होते हैं, लेकिन हम लोग उसी दिन शाम को खत्म करके सोते हैं। हम लोग कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं, 22 साल से हम लोगों ने कभी भी नेक्स्ट डे तक, नेक्स्ट सुबह की चाय हम साथ में ही पीते हैं। सर एक और क्वेश्चन आया है सर जी। इस पे उन्होंने जो आपने एटीट्यूड पे बताया था, तो एक भी क्वेश्चन पूछा है कि क्या साइलेंस भी एक बेस्ट एटीट्यूड है? हर समय नहीं, हर समय साइलेंस नहीं। साइलेंस कई बार एरोगेंस में भी लिया जा सकता है, राइट? आप किसी से बात ही नहीं करेंगे तो उसको, साइलेंस कैन बी वेरी यूजफुल टूल इन मेनी ओकेजन्स, बट in certain occasion you are supposed to speak. If speaking is also considered to be humbleness, right? So silence हर समय नहीं, हाँ जहाँ पे जरूरत है वहां पे बोलना भी चाहिए। हर समय साइलेंस ठीक नहीं है। कई बार साइलेंस को लोग एरोगेंट समझ लेते हैं या उसको घुना समझ लेते हैं कि अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ जरूरत है वहां बोलिए। और विवेकानंद जी के लिए पूछा है कि उनमें भी कंपैशन बहुत ज्यादा था सर, मतलब सोच ही नहीं सकते हम तो वहां तक, हम सर मेरी तो हैसियत ही नहीं जाती वहां तक। तो मैं तो बोलूंगा कि वो तो बहुत इतनी कम उम्र में जिनका डेथ हुआ, इनकी इतनी कम उम्र के बाद अगर इतने सालों बाद उनको हम याद करते हैं, उनका एक स्टेटमेंट, उनका एक स्पीच जो शिकागो का है, जिसको हम प्राउडली, मतलब जिसको हम एक कंट्री का सिंबल बोलते हैं, और इतनी कम उम्र में, उनकी उम्र सुनेंगे सर तो मतलब 39 ईयर्स एज की, मतलब क्या बोलेंगे हम।
इतनी कम उम्र में. एंड ही वाज अ जीनियस. आई थिंक आप लोगों ने कहानी सुनी होगी. ही वाज ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन. सो ही वाज काइंड ऑफ कि वो एक बार ऐसा बोलते थे कि किताब को ऐसा वो लोग वो ऐसे पन्ने पलटाते थे तो किताब पढ़ लेते थे. ही वाज वेरी क्विक रीडर इन शॉर्ट. सो उनको एक अंग्रेज ने टेस्ट करने के लिए एक बार एक किताब दी कि वो नई किताब थी, वो ऑथर भी अंग्रेज ही था. तो उसने बोला कि चलिए आपका बारे में बहुत सुना है हमने, आप इसको जरा पढ़ के बताइए. तो उन्होंने ठीक है, उन्होंने देखा, अपने पन्ने पलटाए और वापस कर दिया. तो बोले क्या है, समझ नहीं आया क्या आपको? नहीं बोले समझ में आया ना. तो बोले अच्छा बताइए क्या है इसमें लिखा हुआ है. तो उन्होंने समझा दिया. तो अंग्रेज पैर पड़ गया उनके, सर गलती हो गई हमसे, आपको हमने टेस्ट किया. सो ही वाज अ जीनियस. सो हम्बलनेस का ऑब्वियसली एग्जांपल है. शिकागो जैसे सिटी में जो हम उनको, आपको शायद मालूम होगा, उनको 0 मिनट दिया गया था बोलने के लिए, जो हमारे लिए अपमान था, जो हमारे देश के लिए अपमान था. उनको एक्चुअली बोलने के लिए 0 मिनट दिया था, जो उनका बाद में दिनों तक उनका वो चला था स्पीच. एंड विच इज जो आज हमको इतनी सम्मान मिलता है अमेरिका में, वो बहुत साल पहले विवेकानंद जी काम. बहुत सारी बातें हैं सर, अगर उनके बारे में बात करना शुरू करेंगे. स्टूडेंट ने बहुत अच्छा बोला है कि वो सर जो किताब पढ़ने की थी वो एक्चुअली टेलीफोन डायरी थी और उसको इतना याद आ गया. वेरी गुड, सुपर्ब सर. We are on same page then. सर वो 12 बचे हैं बाकी सर, 9 तक तो हो गए हम पहुंच. Sure. So let's go to the 12. So 12 जब हमने बोला हमेशा हम गिफ्ट देके जाते हैं, तो इस बार हम गिफ्ट देके जाएंगे. मैं नहीं दूंगा, ऑलरेडी गिफ्ट सबके पास हैं. और ये जब बच्चा पैदा होता है तो ये गिफ्ट उसके साथ ही आते हैं. ये सब प्रभु ऊपर से सारे गिफ्ट करके भेजते हैं. हमारा काम क्या है, हम जैसे हनुमान जी सारे अपने भूल जाते थे. हनुमान जी के पास असीमित शक्तियां थी, लेकिन हनुमान जी अपनी असीमित शक्तियां भूल जाते थे, तो उनको याद दिलाना पड़ता था. तो हमारा काम सिर्फ आपको याद दिलाने का. आप सारे हनुमान हैं. हर एक के अंदर इस दुनिया में जो आदमी आया है उसके अंदर असीमित क्षमताएं होती हैं, असीमित उसके अंदर चीजें होती हैं. उसको खाली एक्सप्लोर करने की जरूरत है, उस पर खाली काम करने की जरूरत है. वो हमारे हाथ में कितने सक्सेस हमको बाद में मिलती है. सो लेट्स सी 12 गिफ्ट आपको भगवान ने क्या देके भेजा है ऑलरेडी. स्ट्रेंथ ऑलरेडी भगवान ने देके भेजा है हमको. सो जहां जहां जरूरत पड़े खाली उसको हमें याद कर लेना. सुंदरता हर एक के अंदर है, हर एक के अंदर सुंदरता है. वो देखने वाले के ऊपर वो कैसे देखता है. आपको कोई एक्टर पसंद है, हमको कोई एक्टर पसंद है. अगर हम वहां पे बात करते हैं, हमको मेरी मम्मी बहुत सुंदर लगती है, हमको मेरी बेटी से सुंदर दुनिया में कोई लगता ही नहीं. तो ये सुंदरता देखने वालों की आंखों में, और हर एक को भगवान ने देके ही भेजा. तीसरा करेज. सबके अंदर साहस होता है, खाली समय पे उसको दिखाना चाहिए. सो इट वहां पे जब जरूरत है तब निकलना चाहिए. साहस उसके होता है, सबके अंदर साहस होता है. बच्चे को जब तक डराओ नहीं तब तक उसको मालूम नहीं होता है कि ये इससे डरना है, इससे अंधेरे से डरना है, या भूत से डरना है, या डॉग से डरना है. जब डराया जाता है तब उसको पता चलता है कि इससे डरना है. अदरवाइज एवरीवन इज बॉर्न करेजियस. तो हमको खाली उसको सही समय पे दिखाने की जरूरत है. चौथा कंपैशन. कंपैशन सबको बचपन से मिला हो, लेकिन समय के साथ हम भूल जाते हैं, हम सेल्फिश हो जाते हैं. हम भूल जाते हैं कि नहीं पहले हमको अपना करना है. नहीं, हमको सबका करना है, हमको मिल बांट के कोई चीज करनी. होप. सबको मालूम है जब पैदा होते हैं कि एक दिन सबको जाना है, लेकिन तभी भी लोग संपत्ति जुटाते हैं, पैसा जुटाते हैं, खुश रखते हैं और काम करते हैं. सबको मालूम है. तो सब होप के साथ ही पैदा हुए. एवरीवन इज होपफुल बाय द बर्थ. जॉय. सब खुश आते हैं. बच्चा जब पैदा होता है तो वो सबसे पहले स्माइल करता है, राइट, या रोता है उसके बाद स्माइल करता है. उसको स्माइल करना कोई सिखाता नहीं है बच्चे को. तो जॉय के साथ बच्चा आता है. टैलेंट. एवरीवन इज बॉर्न टैलेंटेड. खाली उस टैलेंट को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है. सचिन तेंदुलकर बॉलर बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, अच्छे बैट्समैन बन गए. अगर वो बॉलर बनने की कोशिश करते तो शायद कोई नाम भी नहीं जानता था उनका. अबुल कलाम बनना चाहते थे एक पायलट, नहीं बन पाए. अगर बन गए होते तो शायद हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे होते. तो टैलेंट सबके अंदर होता है, खाली उसको पहचानने की जरूरत है. और जरूरत नहीं कि सब लोग सब जगह अच्छा कर ही पाए. जहां पे आपको आपका टैलेंट लगता है वहां पे उसको यूटिलाइज कीजिए. इमेजिनेशन. हर कोई इमेजिन कर सकता है, हर कोई बिगर पिक्चर देख सकता है, खाली उस पर आगे बढ़ने की जरूरत है. रिवरेंस सबके अंदर होता है, राइट. अप्रिशिएशन. आसपास देखो आप, बहुत सारा आपको दिखेगा, ऐसे वंडर्स आपको दिखेंगे, अलग तरह की चीजें आपको दिखेंगी, खाली उसको आपको अप्रिशिएट करने की जरूरत है.
विजडम सबके अंदर होती है, खाली सही समय पे यूज करें, कहाँ पे क्या बोलना है, कहाँ पे क्या करना है, ये खाली हमको आ जाएगा तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली, बाकी भगवान ने तो विजडम करके भेजा है। लव, लव 11th गिफ्ट है हमारा, हम बचपन से ही ऐसे, राइट, सबके अंदर वो भगवान दे के भेजते हैं और वो समय के साथ बढ़ना चाहिए। फेथ, लास्ट गिफ्ट, फेथ सबको है, राइट, हमको फेथ है, हमको किसी ना किसी पे तो फेथ है। हम गॉड पे बोल सकते हैं, हम पेरेंट्स पे बोल सकते हैं, हम गुरु पे बोल सकते हैं, हम अपने कलीग्स को बोल सकते हैं, जिस पे भी हम ट्रस्ट कर सकते हैं, हम साथ में लेके आए, समय के साथ उसको मैनिपुलेट या करप्ट करते हैं, अदरवाइज एवरीवन इज बॉर्न फेथफुल टू समथिंग। दैट्स ऑल आई थिंक, सो थैंक्स फ्रॉम माय साइड। एनी क्वेश्चंस फर्दर फ्रॉम एनीवन? अमित सर, आपका भी स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्शन हो ही नहीं पाया क्योंकि आपका आवाज हम सुन नहीं पा रहे थे सर। सर अभी भी आवाज नहीं आ रही है। तब तक मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ शायद। हाँ जी सर। किसी ने पूछा है कि मॉडेस्ट क्लोथिंग के लिए मिसकंसेप्शन क्या है? जी जी। तो मॉडेस्ट क्लोथिंग मतलब आर वी सेइंग कॉस्टली क्लोथिंग? आ रही है आवाज मैडम? अभी आ रही है सर? हाँ अब आ रही है सर। अब आ रही, क्या बात है। जी सर अब आ रही है बिल्कुल सर। वेरी गुड। मॉडेस्ट क्लॉथिंग सर, हाँ बताइए प्रदीप जी, आप कुछ बता रहे थे। मॉडेस्ट क्लॉथिंग मतलब एकदम सिंपल जो क्लॉथिंग करते हैं हम लोग, एकदम साधारण तरीके से, तो उसके बारे में भी लोगों को मिसकंसेप्ट, ये तो कुछ है ही नहीं। ओके। ये आइंस्टाइन के लिए भी कहा गया था क्योंकि वो बहुत मॉडेस्ट क्लोथिंग में बिलीव करते थे। आई होप मिस्टर चौधरी यही होगा आपका इंटेंशन। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं जो हम सही समझ पा रहे हैं आपके क्वेश्चन को। हाँ सर, साधारण कपड़े पहनते तो उससे लोगों का, सुधा मूर्ति के बारे में भी कहा गया था एक बार, शिवाजी देखिए। हाँ जी, मैं खुद ग्रूमिंग के सेशंस लेता हूँ, मैं इमेज बिल्डिंग के सेशन लेता हूँ, मैं लोगों को बताता हूँ कि भाई क्या पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए। ओकेजन अप्रोप्रिएट कपड़ा पहनना चाहिए। जैसे माहौल में आप हैं, जहां पे आप जा रहे हैं, जहां पे आप हैं, जो चीज आप करने वाले हैं, आपका कपड़ा ही बताना चाहिए आप क्या करने जा रहे हैं। तो उसमें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। मंदिर के पुजारी को अगर मैं मिलने जाऊंगा और उन्होंने अगर 3 पीस सूट पहना होगा तो मेरे को पहला शॉक लगेगा। या मैं एक कॉर्पोरेट मीटिंग में जाऊंगा और वहां पे सज्जन कुर्ता पजामा पहन के बैठे होंगे तो मेरे को लाइफ का शॉक लगेगा। तो हमको ओकेजन अप्रोप्रिएट कपड़ा पहनना है। और दूसरी बात, खुद को क्या अच्छा लगता है। हम दूसरों को, हम कभी फीडबैक नहीं लेते कि भाई हम कैसे लग रहे हैं, हमें मालूम है शीशा सबके घर में। तो हमको खुद को अगर अच्छा लग रहा है और दूसरा हमने ओकेजन अप्रोप्रिएट कपड़े पहने हैं, तो आई थिंक दीज 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी आप ऑड वन ना दिखिए, बाकी सब मतलब आप सब उत्तर नॉर्थ पोल है, साउथ पोल मत बनिए। कुछ ऐसा अजीब मत करिए कि मतलब दूसरों की नजरों में आप अपने आप ही अपने कर्मों से लोगों की नजरों में आ जाएंगे। उसके लिए आपको कपड़े से अट्रैक्ट करने की लोगों की जरूरत नहीं है। आपके ऊपर जो अच्छा लगता है, सलमान खान के ऊपर क्या अच्छा लगता है, जरूरी नहीं मेरे पर अच्छा लगे। तो मैं को खुद के शरीर के हिसाब से, ऐसा नहीं सबका बॉडी का शेप अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, आपको खुद के हिसाब से खुद पे कैसा लगता है वो पहनिए। और उसके बाद लोगों को फीडबैक लेना। हाँ, कोई अगर अच्छा बोलता है ठीक है, कोई क्रिटिसाइज करता है तो थैंक यू बोल के आगे बढ़ जाइए। उसको कभी आप डिसरिस्पेक्ट मत कीजिएगा, डिस्करेज मत कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम से आपको फीडबैक नहीं देगा वो। तो 2 चीजें, अप्रोप्रिएट भी है, ओकेजन अप्रोप्रिएट कपड़े, और दूसरा जो आपको अच्छे लगते हैं वो कपड़े, दैट्स इट। बाकी उसमें कॉस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर साधारण से मतलब कॉस्ट है तो मेरे को नहीं लगता कि बहुत महंगे कपड़ों से कोई सलमान खान या माधुरी दीक्षित लगने लगेगा, या कोई सामान्य कपड़ा पहनेगा तो जो सलमान खान है वो रोड साइड वो दिखने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। तो इट्स नॉट, वो क्लोथ नहीं है, बहुत सारी चीजें उन्होंने की हुई है, इस वजह से वैसे दिखते हैं। जी सर, बहुत अच्छा सर। काफी सारों ने रिफ्लेक्शंस दिया है कि सर आप 12 गिफ्ट के बारे में बता रहे थे, तो ये एक सेशन भी खुद एक गिफ्ट था। So they have expressed very nicely. Over to Amish sir for his address today with our students. थैंक यू प्रदीप जी, बहुत अच्छा, मतलब एज यूजुअल जो आप बोलते हैं उसके हिसाब से रहा। अब मॉडेस्ट क्लोथिंग की बात आई, नए जनरेशन की बात है, तो थोड़ी सी तो समझ में आ गई कि क्या बोलना चाहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं,
कि हम लोग नया मोबाइल लाते हैं ना, तो मोबाइल को ऐसे यूज नहीं करते। सबसे पहले मोबाइल का कवर लेते हैं, टफन ग्लास लगाते हैं, कुछ अच्छा वाला कवर लेते हैं, उसके ऊपर अच्छा वाला स्टैंड भी ले लेते हैं। और ये क्यों लेते हैं सारी चीजें? तो यही स्टूडेंट बोलेंगे कि सर मोबाइल है, सिक्योरिटी चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, सेफ भी रहना चाहिए, अच्छा भी दिखना चाहिए। सो दिस इज व्हाट अबाउट द मॉडेस्ट क्लोथिंग, कि यही है कि आपको क्या कैसा दिखना चाहिए। ठीक है ना, आप अपने हिसाब से उसको डिसाइड कर सकते हैं। और ऐसे ही काफी सारी चीजें, अच्छी बात है प्रदीप जी ने बताई। एक चीज बता दूं, छोटी सी स्टोरी है, प्रदीप जी इंस्पायर हो गया आपसे तो स्टोरी बता रहा हूँ छोटी सी। मतलब एक गाय थी जो घास चरने जा रही थी, जंगल में चली गई और शाम ढलने वाली थी, देर हो गई। और तभी उसने देखा कि एक बाघ उसकी ओर आ रहा है, टाइगर आ रहा है उसकी ओर। सो वो डर गई, डर के मारे भागने लगी, यहाँ से वहां सब जगह भागने लगी। और सामने उसको एक तालाब दिखाई दिया, तालाब के अंदर घुस गई। उसको लगा कि मैं बच जाऊंगी, तालाब थोड़ा सा डीप होगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन तालाब में पानी कम था। तो पीछे पीछे टाइगर भी उसके साथ घुस गया तालाब में। अब वो अंदर तो चले गए, लेकिन तालाब गहरा नहीं था, पानी कम था, कीचड़ ज्यादा था, और दोनों कीचड़ में फंस गए। तो अभी ये है कि दूरी कम थी, टाइगर सामने था, गाय भी सामने थी, लेकिन एक दूसरे को छू नहीं पा रहे थे क्योंकि कीचड़ में फंसे हुए थे, और दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे। तो अभी गाय ने उसके बाद टाइगर को पूछा कि भाई तुम्हारा कोई गुरु या मालिक है? तो टाइगर ने बोला कि मैं जंगल का राजा हूं, मेरा कोई मालिक नहीं, मैं खुद राजा हूं, मैं खुद मालिक हूं। तो गाय ने कहा लेकिन तुम्हारी शक्ति यहाँ पर तो काम में नहीं आएगी, उसका क्या उपयोग है? तो टाइगर बोल रहा है कि तुम भी तो फंस गई हो, मरने के करीब हो, तो तुम्हारी भी तो हालत मेरे जैसी है। तो गाय ने मुस्कुराते हुए बोला कि बिल्कुल नहीं, मेरा मालिक जब शाम को घर पहुंचेगा और मुझे वहां नहीं पाएगा तो ढूंढते हुए मुझे ढूंढने यहाँ पे आएगा जरूर, और वो मुझे निकाल देगा। और तुम्हें कौन ले जाएगा तुम सोच लो भाई। और थोड़ी देर में सच में मालिक आ गया, गाय को निकाल दिया, अपने साथ लेके चला गया, और वो अच्छे से घर पहुंच गई। लेकिन टाइगर नहीं निकल पाया और उसको वहीं पर जान का खतरा था। तो अब ये स्टोरी में थोड़ा सा ये एनालॉजी सेट करें तो गाय कौन है? गाय हमारे समर्पित हृदय का प्रतीक है। टाइगर कौन है? हमारा अहंकारी मन है। और मालिक कौन है? जो गाय का मालिक आया वो ईश्वर का प्रतीक है। कीचड़ क्या है? तो ये संसार हमारा। और संघर्ष, दैट इज द फाइट फॉर सर्वाइवल, अस्तित्व की लड़ाई है हमारी। तो किसी पर निर्भर नहीं होना अच्छी बात है, लेकिन मैं ही सब कुछ हूं और मुझे किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है, मैं ही सर्वगुण संपन्न हूं, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, ये अहंकार है। और यहीं से विनाश का बीजारोपण हो जाता है। इसलिए ईश्वर से बड़ा तो दुनिया में सच्चा हितैषी कोई नहीं है। वो कई रूप में हमारी रक्षा करता है, बट डोंट बी इगोइस्टिक, डोंट बी ओवर एक्सपेक्टिंग। जो है उसको प्रैक्टिकली बिलीव करो, उसको एक्सेप्ट करो और उसके साथ चलो। हम ही सब कुछ है ऐसा मान के चलोगे, देन यू विल बी आइसोलेटेड। आप कहीं कीचड़ में फंस जाओगे, आपको बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। सो जस्ट इंस्पायर्ड बाय योर स्टोरीज, वन लिटिल स्टोरी। थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू सो मच सर। एक कंपैशन पे मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। आई थिंक आज बच्चे हैं तो इनको बोलना चाहता हूँ कि एक बार एक आदमी था, टीन एज में होगा, बहुत परेशान था, भूख से बेहाल था, कुछ भी नहीं था उसके पास। तो वो ऐसे ही जा रहा था, उसने घर पे नॉक किया। वो लोग भी बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं थे। उन्होंने दरवाजा खोला तो इसने बताया कि मेरी बहुत हालत खराब है और मैं प्यास से और भूख से तड़प रहा हूँ, ऐसा ऐसा बोला उसने। तो लड़की निकली छोटी सी, 4-5 साल की रही होगी। तो उसने बोला ऐसा ऐसा। लड़की बोली घर में तो हमारे भी वैसे कुछ है नहीं, बट एक गिलास दूध है और मैं लेके आती हूँ अभी दौड़ के। वो गई, वो एक गिलास दूध लेके आ गई वो, और उसने उसको दे दिया। तो ही फेल्ट बेटर, वहां से वो चला गया। इस बात को बहुत साल हो गए, वो चीज खत्म हो गई। ये आदमी जो करते करते बड़े होके एक सर्जन बन गया, बहुत बड़ा सर्जन था। इट्स अ रियल स्टोरी ऑफ, आई थिंक आई एम जस्ट मिसिंग हिज नेम, आप लोग शायद सर्च करेंगे गूगल पे पहले। तो काफी साल हो गए इस चीज को। उसी हॉस्पिटल में कोई सज्जन सर्जरी के लिए आए, और ये डॉक्टर सुन सकते थे कि बाहर बहुत चर्चा हो रही है, उनके फैमिली वाले बहुत परेशान हैं कि इनका पैसा कैसे होगा, क्या करेंगे, कहाँ से अरेंज करेंगे सर्जरी, यू नो स्पेशली इन यूके एंड ऑल, सो दैट कॉस्ट ह्यूज, दैट कॉस्ट अ बॉम्ब। सो
ये लोग बहुत चिंता में थे तो उन्होंने ये जो सर्जन थे उन्होंने जाके सर्जरी वर्जरी कर दी और अब ये लोग अगेन टेंशन में कि सर्जरी वर्जरी भी हो गई, ये पैसा कहाँ से लाएंगे। तो ये लोग जब बिल गए तो उसमें लिखा था पेड, जो बिल लेने गए तो उसमें लिखा था पेड। तो उन्होंने नेक्स्ट पेज खोल के देखा, सो द बिल वाज पेड बाय अ टाइनी गर्ल बाय 1 glass of milk एंड इट्स अ रियल स्टोरी, इट्स अ रियल स्टोरी, थिंग्स हैपन एंड वो भूलना नहीं चाहिए कभी भी हमको। वो उन्होंने अच्छा किया, आगे उन्होंने अच्छाई को बढ़ाया और आज उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। उनको मालूम भी नहीं होगा कहाँ वो बैठे हैं, कहाँ हम बैठे हैं, कहाँ वो हैं, और सैकड़ों साल हो गए वो इस बात को, लेकिन आज भी हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो ये ऐसा है। तो अगर हमारे साथ कोई अच्छा करता है तो हमें उसको हमेशा आगे बढ़ाना है, उसको याद रखना है। खराब करता है, हैव अ सेलेक्टिव मेमोरी, बीटा 1 सेलेक्टिव रिसेप्टर्स होते हैं, ऐसे आपको सेलेक्टिव मेमोरी रखनी है। खराब भूल जाना है, कम से कम मैं तो उस मामले में एक्सपर्ट हूँ, मैं बुरी चीजें बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। आप मेरे साथ बुराई करो, देखना मैं जल्दी से फिल्टर लगा के हटाता हूँ, लेकिन हाँ अच्छा करोगे तो मेरे को उस मामले में मेमोरी बहुत अच्छी है, मेरे को सालों याद रहता है। So that's how, and that's the reason of peace. No, I always smile, I remain happy. So this is one of the reason कि मैं बुराई से ठीक है, जो उसने उसका जो दिमाग या उसकी रही होंगी, वो बोलते हैं आदमी यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, उसकी रही होगी मजबूरियां, उसने कुछ सोच के वो किया होगा, ठीक है, लेट्स फॉरगिव, दैट्स इट। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, बस उतना ही है। थैंक यू सो मच सर। Thank भारती मैडम कुछ बोलना चाह रहे थे मैडम आज इस ओकेजन पे, एंड स्टूडेंट्स आर रिफ्लेक्टिंग देयर ओन। भारती मैडम, प्रदीप सर कुछ स्टूडेंट्स बोलते कि कोई अच्छी बुक्स के नाम madam, instead of we speaking, let the students ask questions and Pradeep sir answers. That would be more appropriate. बहुत सारे क्वेश्चंस उनके पॉप and अप then आ now रहे थे। Pradeep sir, since everything would be starting offline from 5th of October, we request your presence at the campus in October itself. पक्का बराबर, spare time with us. And myself or Namrata madam would be calling you. You just give us time. Sure. मैं तो बोला हमको वहीं रख लीजिए। मैं तो बोला हमको वहीं रख लीजिए। Oh, that would be nice. I am ready to be there for always. Permanent member. एक साथ हमारा दो काम होगा. You will be teaching biology students as well as your sessions. I'll be doing fun biology. Yeah, fun. So what I do is, for example, angiotensin. So I tell them the meaning of angio is blood vessel and tensin is a particle which causes tension. So it's a blood particle which is responsible for the hypertension or the blood pressure. So मैं ऐसे पढ़ाता हूँ मैडम, मैं एकदम अंदर उसका टुकड़े करके पढ़ाता हूँ। Appropriate name, हमने भी नहीं सोचा था कि why it is this. Right. Okay, let the students. It is the session is for the students. Yes. Thank you, madam. Thank you, everyone. Now I invite Harmi Patel from BSc Bioscience to tender vote of thanks to Pradeep sir. Because for new students, this is just an information that always students, they introduce the speaker, especially turning point session, and they only tender vote of thanks. So over to Harmi. Thank you so much, ma'am. Very pleasant good afternoon to one and all present here. Honorable speaker guest, Mr. Pradeep sir, respected Provost J.S. Yadav sir, Dean Dr. Bharti Dave ma'am, and Dr. Amish Vyas sir, Pradeep sir, Abhinand sir, and the panelist member, and all my dear friends. On behalf of the InterSil University, I extend a warm welcome to all the people in the gathering. I would like to express my gratitude to all esteemed delegates of the webinar for their presence and contribution to make this webinar a great success. I extend my gratitude to our honorable speaker, Mr. Pradeep Singh sir, to take out time from his busy schedule to grace the event. Thank you for inspiring and encouraging us with your words on this special day. A special thanks to J.S. Yadav sir, Provost of our college, for providing immense support to make this webinar a successful. I extend my gratitude to Dr. Bharti ma'am and Dr. Amish Vyas sir, Dean of School of Science and School of Engineering, respectively, to organize such an effective webinar for all of us. I must thank the organizing team, Dr. Namrata ma'am, Dr. Karen sir, and Dr. Smith Chaudhary sir, for making this webinar such an amazing event. Thank you, everyone, once again for making it a great success. Thank you so much, ma'am. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, Harmi. Sir, students are posting questions regarding books, Yeah. Which they can I have a treasure of books.
I'm into learning and development from so many years. So खजाना है मेरे पास. So आप खाली टॉपिक बताइएगा, right? And definitely I'll send a book. सर कुछ बच्चों ने एटीट्यूड और कंपैशन और ऑप्टिमिज्म के पर भी कहा था. एक एक करके भेजेंगे तो लोग पढ़ेंगे. अदरवाइज मेरे पास भी 10, 15, 20 बुक आती तो मैं उसमें से एक भी नहीं पढ़ पाता हूँ फिर. जी ठीक है सर. So what I'll do is I'll send one book. If you say attitude, I'll send an attitude. Sure sir. तो आप खाली टॉपिक बताइए. सर वो जो 6 क्वालिटीज उससे सबसे पहले एप्रिसिएशन के ऊपर था. So we can start with appreciation or attitude whichever you want. मेरे पास आप बोलो किताब है, पढ़ने वाले चाहिए हमको. हाँ सर बिल्कुल. फिर मैं रिफ्लेक्शन पूछूंगा कि आपने पढ़ा उसमें से क्या सीखा. हाँ बिल्कुल. Sure sir, I'll send. My pleasure. Thank you Pradeep. Thank you so much. Thank you. The attendance for this session is intact, has remained intact up to the end. It's all shows the way in which you are delivering. Thank you so much. To the students. Yes. It's all affection and love. So I'm always blessed to have the time and attention and the concentration of my audience. I'm always blessed with that. So I am so thankful to each one of you, because always people give me with a lot of generosity, time and attention, and your concentration and focus. Thank you so much. Yeah, you can see the reflections, sir. Needless to say. Thank you, students, for being with us. And tomorrow we'll begin with yet another session on effective communication skills. Tomorrow, 11 o'clock. Remember to be with us, and we'll continue this till 4th, where you are here physically. So, thank you. I wish everyone safety and health. Namaskar, Jai Hind. Thank you. Thank you, Pradeep, sir. Prachi, you can wrap up. Okay, ma'am. Yeah.